राइट। अब इसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रह गए थे वो हम दिल्ली सल्तनत के गवर्नेंस सिस्टम से करेंगे इसमें, ठीक है। तो गवर्नेंस सिस्टम ऑफ दिल्ली सल्तनत यहाँ से देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट है जो अभी तक नहीं पढ़े हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जो इन जनरल सुल्तान की उपाधि लगाते थे, ये प्रथा टर्किश रूलर्स के आगमन के बाद स्टार्ट हुई थी। और द फर्स्ट रूलर टू होल्ड दिस टाइटल दैट इज़ सुल्तान, सो दैट वाज महमूद गाजनी ने पहली बार ये सुल्तान की उपाधि अपने नाम में ग्रहण की थी। देन ये सब तो ठीक है। अब ये जो अब ये देखो क्या है, मजलिस ए खलवत, मजलिस ए खलवत, व्हाट इज़ दैट? सो इन सल्तनत पीरियड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वर कॉल्ड एज, अब ये देखो ये मुझे नया फैक्ट पता चल रहा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वर कॉल्ड एज मजलिस ए खलवात, मजलिस ए खलवात, एंड मजलिस ए खलवात यूज्ड टू मीट at majlis khas. So these 2 points, something new for me, right? Majlis e Khalwat, that was the council of ministers during the Sultanate period, and the place where they used to sit and discuss and deliberate, that place was called as Majlis e Khas, ठीक है। Now इसके अलावा कुछ दिल्ली सल्तनत में कुछ डिपार्टमेंट्स एंड वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड द फाउंडर ऑफ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स, जैसे कि दीवानी अर्ज है ये, इट वाज मिलिट्री डिपार्टमेंट विच वाज स्टार्टेड बाय बलबन। देन दीवानी रियासत, दिस वाज मार्केट कंट्रोल डिपार्टमेंट, स्पेशली द मार्केट प्राइसेस कंट्रोल डिपार्टमेंट, दीवानी रियासत, दैट वाज स्टार्टेड बाय अलाउद्दीन खलजी। फिर दीवानी वक्फ, ये बेसिकली एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट था, एंड दिस वाज स्टार्टेड इवन बिफोर अलाउद्दीन खिलजी, दैट इज़ जलालुद्दीन खलजी ने यह स्टार्ट किया था, दीवानी वक्फ डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। एंड दीवानी मुस्तखराज वाज द फाइनेंस डिपार्टमेंट इन जनरल which was belonging to Alauddin Khalji's administration. Then Diwani Kohi, this was Department of Agriculture during the times of MBT, that is Muhammad bin Tughlaq. Diwani Bandigan was the slaves department during Firuz Shah Tughlaq. And Diwani Shifa, in fact not Diwani, Darul Shafa, this was a charity hospital where people could get cured for free. So Darul Shafa, this was started by Firuz Shah Tughlaq. And Diwani Ishtiyaq, this is the pension department, again started by Firuz Shah Tughlaq. Diwani Ishtiyaq, again Firuz Shah Tughlaq के समय का है ये. And then Diwani Insha, that is a state correspondence department. So एक बार फिर से बता दे रहे हैं, देखो कौन किसका फाउंडर है. सो दीवानी अर्ज मिलिट्री डिपार्टमेंट बलबन, दीवानी रियासत मार्केट प्राइसेस डिपार्टमेंट बाय अलाउद्दीन खलजी, दीवानी वक्फ, that is Department of Expenditure, started by Jalaluddin Khalji. Diwani Mustakhraj, that was the finance department of Alauddin Khalji. Diwani Kohi was the agricultural department by Muhammad bin Tughlaq. Diwani Bandigan was the slaves department of Firuz Shah Tughlaq. And Diwani Shifa, that not Diwani, Darul Shafa was where people could get cured of diseases, like a free hospital that was started by Firuz Shah Tughlaq. Diwani Ishtiyaq was the pension department started by Firuz Shah Tughlaq. And yes, Diwani Insha was the state correspondence department. And Diwani Ishtiyaq was the pension department started by Firuz Shah Tughlaq. In addition to Wazir, there were many other officers in these departments. Among them were Mushrif-e-Mumlik, Accountant General, and Mustawfi-e-Mumlik, Auditor General. So these two were important. Both of them were given the charge of income and expenditure respectively. So ये जो मुशरिफ-ए-मुमलिक है, दैट वाज मुशरिफ-ए-मुमलिक, ये ज़्यादा ध्यान किस पे देता था? इनकम वाले साइड पे देता था मुशरिफ-ए-मुमलिक. एंड सो अकाउंटेंट जनरल वाज मुशरिफ-ए-मुमलिक. he focused more on the income of the treasury, state treasury. Mushrif-e-Mumlik, income of the state treasury, that is accountant general, whereas Mustawfi-Mumlik, that was the expenditure पे ध्यान देता था, that is auditor general था ये, और this was the department of expenditure, ठीक है. So I'm going to tell that once again. So Mushrif-e-Mumlik and Mustawfi-Mumlik, ये दो designations थी. Mushrif-e-Mumlik basically focused more on the income side of the state treasury, and he was called the accountant general, whereas Mustawfi-Mumlik, that was the
auditor general, and he focused more on the expenses and the expenditures made out of the state treasury. So he was like an auditor general during the Sultanate administration. ठीक है. Now सुल्तानत पीरियड के समय चीफ डिपार्टमेंट्स अभी तो कुछ बता चुके हैं, जैसे इनमें जो नहीं पढ़े हैं हम, देखो एक दिवाली रिसालत है, दैट वाज द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स, एक ये नहीं पता था हमको, और काजी उल क़ज़ात जस्टिस डिपार्टमेंट, और जहाँ भी सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन में तुम्हें काजी का शब्द सुनने में आए तो समझ लेना कि ये जुडिशल से जुड़ा है. फिर सदर उस सदर, दैट इज़ द डिपार्टमेंट टू लुक आफ्टर religious matters and religious endowments. So that is सदर उस सदर, डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस एंडाउनमेंट्स. एंड दीवानी इंशा तो हम जानते ही हैं, करस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट, दिवाली रिसालत फॉरेन अफेयर्स, काजी जस्टिस, एंड सदर उस सदर डिपार्टमेंट डीलिंग विद रिलीजियस एंडाउनमेंट्स. नाउ द हेड ऑफ द स्टेट was also the ex officio Qazi and Sadr us Sadr. So head of the state kaun tha? Alauddin Khalji himself was the head of the state. So he was the Qazi as well as Sadr us Sadr, that is department. He was the head of the department which looked after the religious matters and religious endowments. Darul Shifa is one part of the old city of Hyderabad, India. This was founded by Muhammad Quli Qutub Shah in 1591. अब ये छोड़ दो, ये फैक्ट थोड़ा सा डाइसी और डिस्प्यूटेड लग रहा है. Now इसके अलावा भी और कुछ, जैसे एक वकील इधर यहाँ देख लो, और एक दीवानी रियासत हम देख चुके हैं. तो यहाँ से बस दीवानी बरीद और वकील इधर, ये दो डिपार्टमेंट्स और देख लो सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन में. सो दीवानी बरीद, दैट वाज द इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, एंड बरीद इमू मालिक वाज द प्रिंसिपल ऑफिसर इन दिस डिपार्टमेंट, whereas वकील इधर looked after the personal services of the royal palace and the sultan. वकील इधर personal services of the royal palaces and the sultan himself. तो personal services of sultan himself and the royal palace affairs कौन देखता था? वकील इधर. इसके अलावा भी हैं कुछ, जैसे 4 प्रकार के अमीर हैं, हजीब, शिखर, अखुर, मजलिस. तो अभी हमने तो मजलिस खलवट और मजलिस खास ये सब देखा था, काउंसिल मिनिस्टर्स एंड द प्लेस वेयर दे यूज्ड टू सिट रिस्पेक्टिवली. अब हम देख रहे हैं अमीर. सो अमीर हजीब ये कौन थे? was the office in charge of the royal court. So royal court को अमीरी हजीब बोलते थे. एंड अमीरी शिखर ये used to arrange hunting for sultan. अमीरी शिखर used to arrange hunting for the sultan. अमीरी अखुर, this office commanding the horses. अमीरी मजलिस, an officer in charge of royal feasts and festivals. तो royal feasts का इंचार्ज कौन था? अमीर ई मजलिस. और सारी जंदर, चीफ ऑफ रॉयल बॉडीगार्ड्स, और शाहना ई पिल, सुपरिटेंडेंट ऑफ रॉयल एलिफेंट्स. सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. शाहना ई पिल, दैट वाज सुपरिटेंडेंट ऑफ रॉयल एलिफेंट्स. एंड दीवानी इस्तिकक. अब देखो इस्तिकक ऐसा मिलता जुलता एक इश्तियाक हम पढ़ चुके हैं ड्यूरिंग तुगलक्स. सो आई थिंक इससे हम गेस कर लेंगे कि ये पेंशन डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है. ठीक है, तो इस्तिकक दैट वाज पेंशन डिपार्टमेंट. और जहाँ पे शाहना ई पिल आ जाएगा, PIL, दैट इज़ रॉयल एलिफेंट्स का सुपरिटेंडेंट. सर ई जंदर, तो ये बेसिकली रॉयल बॉडीगार्ड्स का चीफ होता था, सर ई जंदर. अमीरी मजलिस रॉयल फीस्ट्स, अमीरी अखुर रॉयल हॉर्सेस इंचार्ज, एंड अमीरी शिकार है ये, शिकार used to arrange hunting for the sultan. And Amiri Hazib was the office in charge of the royal court. Then दीवानी खैरात और दीवानी बंडिगन हमको पता है. दीवानी इश्तिकक, दीवानी खैरात, दीवानी बंडिगन वर फाउंडेड बाय फिरोज शाह तुगलक. तो ये 3 डिपार्टमेंट्स जो हमने अभी हाल ही में पढ़े हैं, जैसे दीवानी इश्तिकक जो कि पेंशन से जुड़ा था, दीवानी खैरात दैट इज़ चैरिटी, एंड दीवानी बंडिगन दैट इज़ स्लेवरी, ये एक्सक्लूसिवली फिरोज शाह तुगलक लेके आए थे. वकील इधर दैट इज़ रॉयल पैलेस अफेयर्स को एंड पर्सनल सर्विसेज ऑफ द सुल्तान, राइट. तो वो काम वकील इधर करता था, अलॉन्ग साइड रॉयल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एंड हेड ऑफ फैक्ट्रीज भी था ये. नाउ द 4 सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ वर कुरान, हदीथ, इज्मा एंड कियास. तो कुरान और हदीथ तो हमको पता था, इज्मा और कियास ये दोनों नहीं पता था. दीज आर द 4 सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ. यहीं से पढ़ के जो मौलवी लोग होते हैं लॉज बना देते हैं, मुस्लिम लॉज. तो कुरान, हदीथ, इज्मा और
कियास, कियास, QIYAS, IJMA, इज़्मा एंड कियास. सो ये दो और सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ हैं, ठीक है. नाउ काजी उल कुज़ात वाज द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ जस्टिस आफ्टर द सुल्तान. काजी उल कज़ात, अगेन मैंने बताया कि सुल्तान, जहाँ भी काजी देखो दैट मीन्स जस्टिस से जुड़ा है. सो काजी उल कज़ात वाज द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ जस्टिस आफ्टर द सुल्तान. The cases during Sultanate period were decided with the help of qazis and muftis. The posts of qazi and mufti were hereditary. The department called Amir-e-Dah, Amir-e-Dah, D-A-H, used to assist qazi in court. तो ये ऐसा समझ लो, मतलब जो जज होता था उसको सहायता प्रदान करता था अमीर-ए-दह, like a judicial assistant, Amir-e-Dah. Then the Delhi Sultanate was divided into several provinces called Iqta, and the Iqta was in charge of a mukti or iqtidar. Iqta was further subdivided into shiks, that was janpads headed by shikdars, and mustakraj were divided into parganas, right. तो एक तो इक्ता हो गया, that was the provinces, right. provinces हो गया इक्ता. उसके बाद फिर जनपद्स को क्या बोल रहे हो, शिक बोल रहे हो. और उसके इंचार्ज कौन होते थे. provinces were basically divided into various janpads, जो कि they were placed under in charge of Sheikh. Then उसके बाद फिर परगनाज आते थे. Amil used to be the chief officer of the परगना. तो परगना that was the छोटा यूनिट होता था काफ़ी गाँव का, तो उसका इंचार्ज अमील होता था. The smallest unit of administration was the village. And in the Sultanate period mainly 3 types of land revenues existed. अब सल्तनत के समय 3 प्रकार का था. एक बटाई था, एक ये मशाट और मुक्ति. So ये क्या है, 3 types of land revenues that existed during Sultanate period. Alright, so खरज, चराई and घरी, यहाँ तो अलग ही दे रखा है. So during the Sultanate period 3 prominent types of land revenue were batai. Batai was the crop sharing. This system existed with different names, Kismat-e-Galla and Galla Bakshi, etc. So that was batai. उसके बाद मसाहट, that was land measurement. The yield was decided on the basis of measurement of land, so that was मसाहट. और बटाई क्या था, that was the share of the state was decided in the actual yield, so that was बटाई. इसके बेसिस पे रेवेन्यू होता था. फिर मसाहट that was the ज़मीन नाप के कितना का होना चाहिए वो होता था. The yield was decided by the measurement of the land और by the measurement of the produce, तो वो बटाई होता था, ठीक है. और फिर तीसरा था मुक्ति. It was a mixed system of rent fixation. It was based on बटाई revenue system. मुक्ति का basically it was a mixed system of rent fixation. It was based on बटाई revenue system, ठीक है. तो ये 3 प्रकार के थे, मसाहट, मुक्ति और बटाई, during the Sultanate period. Then Ghiyazuddin was the first ruler to promote a canal for irrigation. ठीक है, Ghiyazuddin was the first ruler to promote a canal system for irrigation. अब ये मतलब first ruler है during the Sultanate की बात हो रही है. Now सोनधार और Takavi was an agricultural loan, so it was started by Muhammad bin Tughlaq, and the land under the government's control was called Khalisa land. Alauddin requisitioned क्या है यार, the donated land and converted them to the Khalsa land. अच्छा, basically land nationalize कर देता था. Types of Sultanate revenue, अब ये तो land revenue था 3 प्रकार के. बाकी प्रकार के टैक्स क्या थे, जैसे जिजिया था, that was the protection tax to be charged from non-Muslims. फिर ज़कात, that was the religious tax, 40th part of the property to be charged from Muslims. फिर खर्च था, land tax to be charged from non-Muslims. and उश्र land tax to be charged from Muslims. तो देखो खर्च क्या था, खर्च was non-Muslims से land tax लेना, और उश्र था land tax to be charged from Muslims, ठीक है. तो जिसमें यू आ रहा है that is मुस्लिम के द्वारा land tax लेने वाले को टैक्स को क्या कहते थे, उश्र, and land tax from non-Muslims was called kharaj, whereas zakat was religious tax paid by the Muslims and jizya was the religious tax paid by non-Muslims. Now military system of Sultanate में इतना डेप्थ में तो नहीं पूछना चाहिए, ठीक है. अब ये देखो जैसे तो 10 घोड़ों का इंचार्ज को एक सरखेल कहते थे. 1 सरखेल इक्वल टू 10 कैवलरीज, ठीक है. नाउ और 10 सारखेल
के ऊपर एक सिपाहा सलार होता था, सिपाहा सलार, ठीक है। तो देखो ध्यान से, 10 घोड़े के इंचार्ज को सलखेर कहते थे। एक सलखेर इक्वल टू 10 कैवलरी। फिर 10 सलखेर इक्वल टू 1 सिपाहा सलार। नाउ 10 सिपाहा सलार के ऊपर एक अमीर होता था, ठीक है। तो कुल मिला के मतलब 1000 कैवलरीज हो गई अभी तक, ठीक है। सो 1 अमीर के अंदर 1000 कैवलरीज हो गई। फिर एक मलिक के अंदर 10 अमीर आते थे, दैट मीन्स 10,000 कैवलरीज। और फिर उसके ऊपर आता था एक खान, यानी कि 1,00,000 कैवलरीज, यानी 10 मलिक। और सबसे ऊपर आता था सुल्तान, दैट इज़ चीफ ऑफ खान्स, सुप्रीम कमांडर। तो काफ़ी अच्छा है ये। तो सबसे नीचे आता है तुम्हारा सालखेर, दैट इज़ 10 कैवलरी। फिर एक सिपाहा सलार, दैट इज़ 10 सालखेर या 100 कैवलरीज। उसके बाद आता है एक अमीर, दैट इज़ 10 सिपाहा सलार, यानी कि 1000 कैवलरी। और फिर सिपाहा सलार अमीर के ऊपर आते हैं मलिक, ठीक है। तो मलिक के अंदर 10 अमीर आ जाएंगे, यानी कि 1,00,000 कैवलरीज। और मलिक के ऊपर खान, और खान के ऊपर सुप्रीम कमांडर, दैट इज़ सुल्तान, राइट। सो इसमें बस ये कन्फ्यूजन हो सकता है, अमीर, मलिक और खान, इनमें समझ लेना हायरार्की। सो खान सबसे ऊपर है, फिर अमीर है, खान सबसे ऊपर है, फिर मलिक है, फिर अमीर है नीचे। द आर्मी ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली वॉज कॉल्ड इश्मे काइब और काइब सुल्तानी। काइब सुल्तानी बेसिकली कलेक्टिव नेम था आर्मी ऑफ द सुल्तान ऑफ दिल्ली। The Sultanate military system was based on the decimal systems, same as the Mongols used, and Alauddin provided soldiers with cash salaries. Firuz Shah Tughlaq had hereditary soldiers as well, ठीक है, ये भी important point है। The Sultanate army mainly consisted of 3 divisions, the cavalry, artillery and infantry. The breeding of silkworms became popular during the Sultanate rule, very important point. The breeding of silkworm became an important practice during the Sultanate rule. A group of traders were called तुज्जरी खास को बेसिकली ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स को तुज्जरी खास कहते थे। तुज्जरी खास इक्वल टू ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स। फिर देवल, ये गुजरात में है, वॉज कंसिडर्ड अ प्रॉस्परस सिटी ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। इट ऑल्सो सर्व्ड एज एन इंटरनेशनल पोर्ट। तो ये देवाल नामक जगह है गुजरात में। सल्तनत काल में ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था, प्रॉस्परस सिटी था, और एक इंटरनेशनल ट्रेडिंग पोर्ट भी था। Lahore and Bayana were famous for indigo plantation. तो लाहौर एंड बयाना, these 2 places were famous for indigo plantation during the Sultanate rule. Alright, अब कुछ फेमस बिल्डिंग्स हैं जैसे कि कवत्तुल इस्लाम, अढ़ाई दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार। ये सब तीनों कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाया है। फिर नसीरुद्दीन महमूद टोम और सुल्तान गढ़ी, ये सब इल्तुतमिश बनवाया है। और अलाई दरवाज़ा, जमात मॉस्क, ये अलाउद्दीन खिलजी बनवाया है। अलाई दरवाज़ा, जमात मॉस्क। और तुगलकाबाद गियाजुद्दीन तुगलक बनवाया है, राइट। सो दीज वर द बिल्डिंग्स। इसके एक बार फिर से बता दे रहे हैं। तो ये तो हमको पता है तुगलकाबाद, अलाई दरवाज़ा और जमात खाना मॉस्क, ये अलाई दरवाज़ा एंड जमात खाना मॉस्क, ये खिलजी बनवाया अलाउद्दीन। फिर सुल्तान गढ़ी और नसीरुद्दीन महमूद का टोम्ब, ये इल्तुतमिश बनाया है, इल्तुतमिश। फिर ठीक है, इतना काफ़ी है। फिर अब ये कुछ टाइम पीरियड दे रखा है, ठीक है। सो इस पे भी आता है, देखो नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो 1286 से 1290 गियाजुद्दीन बलबन के बाद जो आखिरी आया था, दैट वाज कैकाबाद। उसके ऊपर गियाजुद्दीन बलबन था 1266 से 1286 के बीच। उसके पहले नसीरुद्दीन महमूद था 1246 से 1266। और फिर 2 लोग आए थे बहुत क्विक टेन्योर के लिए, एक बहरम शाह और एक मसूद शाह। तो ये 1240 से 42 एंड देन 1242 से 46। तो बहरम शाह 40 से 42 एंड मसूद शाह 42 से 46, राइट। और इसके ऊपर फिर सुल्तान रज़िया थी, रज़िया सुल्तान 1236 से 1240। और सुल्तान रज़िया के ऊपर रुकनुद्दीन थे, रुकनुद्दीन 1236 से 1236, हार्डली फ्यू मंथ्स। रुकनुद्दीन के बाद ही आई थी रज़िया सुल्तान। और फिर रुकनुद्दीन के पहले तो इल्तुतमिश थे 1211 से 1236। एंड आरम शाह इल्तुतमिश से पहले आए थे, हार्डली 1 साल किए थे टेन्योर। आरम शाह वॉज फ्रॉम 1210 to 1211 एंड कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 to 1210।
एक बार फिर से बता दे रहे हैं, देखो इसमें कैकाबाद 1286 to 1290, गियाजुद्दीन बलबन 1266 to 1286, नसीरुद्दीन महमूद दैट इज़ 1246 to 1266। और नसीरुद्दीन महमूद के ऊपर कौन था? दो लोग थे। 1240 से 42 कौन थे? बहरम शाह। और 1242 से 46 मसरूद शाह। ठीक है, राइट। देन बहरम शाह दैट इज़ 1240 से ऊपर जब जाएंगे पहले तो फिर रज़िया सुल्तान थी 1236 to 1240। और रज़िया सुल्तान के पहले रुकनुद्दीन थे 1 साल के लिए सिंपली, दैट इज़ 1236 to 1236। उसके ऊपर फिर इल्तुतमिश थे 1211 से 1236। और इल्तुतमिश के ऊपर आरम शाह थे हार्डली 1 ईयर, दैट इज़ 1210। एंड देन 1206 से 1210 तुम्हारे कुतुबुद्दीन ऐबक थे। देन अब ये पूरी की पूरी खलजी डायनेस्टी का दे रखा है। सो जलालुद्दीन दैट वाज फ्रॉम 1290 to 1296 एंड देन फ्रॉम 1296 to 1316 दैट वाज अलाउद्दीन खिलजी। और उसके बाद छोटे 4 साल थोड़े से टेन्योर के लिए कोई अलाउद्दीन खिलजी के भी बाद जो आए थे दैट वाज मुबारक खिलजी 1316 to 1320। अब इसके बाद जो सबसे लॉन्गेस्ट डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत में दैट वाज गियाजुद्दीन तुगलक की। ये 1320 से स्टार्ट होती है। ये तो मैंने बता ही चुका है कि ये लॉन्गेस्ट है सबसे, ठीक है। तो 1320 से स्टार्ट होती है गियाजुद्दीन तुगलक 1320 से 1325। फिर MBT 1325 to 1351। देन फिरोज शाह तुगलक 1351 to 1388। अब इसके बाद के इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, बस ये आखिरी इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ नसीरुद्दीन महमूद शाह। दिस इज़ अ डिफरेंट नसीरुद्दीन ऑफ तुगलक डायनेस्टी। तो ये 1394 से 1412 के बीच रूल किए थे। फिर सैयद डायनेस्टी की बात कर रहे हैं तो 1414 से 1451 के बीच है ये। और इस सैयद डायनेस्टी में 4 ही लोग आए थे। ईयर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बस टेन्योर इम्पॉर्टेंट है। और इसका पहला और आखिरी है, तो पहला खिज़र खान है और आखिरी अलाउद्दीन आलम शाह है, दैट इज़ 1445 to 1451। वेरस 1414 में जो पहला आया था 1414 से 1421 दैट वाज खिज़र खान। इसके बाद लोधी में 1451 में आए थे बहलोल। फिर सिकंदर आए थे बीच में, द ग्रेटेस्ट ऑफ द लोधीज़। और फिर लास्ट में इब्राहिम लोधी 1517 to 1526। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट किताब हैं जैसे किताबुल हिंद। हाँ, तो अलबरनी की बात करें अगर, तो इन्होंने तहकीक हिंद और किताबुल हिंद ये 2 किताबें लिखी थी। फिरदौसी ने शाहनामा लिखा था। मिनहास उस सिराज इन्होंने तबाकत नसीरी लिखी थी। तबाकत नसीरी वॉज रिटन बाय मिनहास उस सिराज। देन ज़ियाउद्दीन बरानी ने क्या लिखा था? तरीक़े फ़िरोज़शाही, ठीक है। और इब्न बटूटा ने रिहला लिखा था। और उटबी ने किताबुल यामनी लिखी थी। देन अमीर खुसरो ने क्या लिखा था? खैज़ानुल फुतूह एंड तुगलकनामा। खैज़ानुल फुतूह एंड तुगलकनामा वर रिटन बाय अमीर खुसरो। एंड अब मलाधार बासु इन्होंने श्री कृष्ण विजया लिखा था। और यहिया बिन अब्दुल्ला सरहिंदी, तो ये सिंपली यहिया याद रखो, यहिया रोट तरीक़े मुबारक शाही। एंड आमिर हसन ये कोई थे सिज्जी आमिर हसन सिज्जी, ये फवाद उल फवाद यानी कि फवाद इन शॉर्ट 2F फवाद दैट वाज रिटन बाय समवन कॉल्ड सिज्जी SIZZI। और अब्दुल वाहिद बिलग्रामी अब्दुल वाहिद बिलग्रामी ने क्या लिखा था? हकायके हिंदी यानी कि 2H इन शॉर्ट हकायके हिंदी 2H, ये कोई बिलग्रामी ने लिखा था, ठीक है, अब्दुल वाहिद बिलग्रामी ने। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, देखो जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो देख लो। तारीख़ मुबारक शाही यहिया ने लिखा था, ठीक है। और श्री कृष्ण विजय कोई मलाधार बासु। खैज़ानुल फुतूह बाय आमिर खुसरो एंड तुगलकनामा वाज आल्सो रिटन बाय आमिर खुसरो। किताबुल यामनी बाय उटबी, रिहला बाय इब्न बटूटा। तरीक़े फ़िरोज़शाही दैट वाज रिटन बाय ज़ियाउद्दीन बरानी, ठीक है। तरीक़े फ़िरोज़शाही वाज रिटन बाय ज़ियाउद्दीन बरानी। एंड तबाकत नसीरी वाज रिटन बाय मिनहास उस सिराज। शाहनामा वाज रिटन बाय फिरदौसी। एंड किताबुल हिंद और तहकीक हिंद बाय अलबरनी। ऑलराइट, सो अब विजयनगर अगले से देखते हैं।